بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں آج ایک نیا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ شادی کی بندش کو انشاءاللہ توڑ دے گا۔ لڑکے جن لڑکیوں کی یا جن لڑکوں کی شادی نہیں ہو پا رہی یا ہوتے ساتھ ہی ٹوٹ جاتی ہے، بنا کسی وجہ سے شادی ٹوٹ جاتی ہے اور شادی پر آپ کے کسی رشتہ دار نے یا کسی نے کچھ بندش کی ہوتی ہے جس وجہ سے رکاوٹ بنی ہوتی ہے، کوئی رشتہ ہوتے ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ اور جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتی ہیں، یا لڑکے کی والدہ جو ہیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو اجازت آپ کو دی جاتی ہے، کوئی بھی آپ اس میں سے وظیفہ کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ پانچ چھ میری بہنیں ہیں ملک کے پاکستان سے باہر کی ہوئی، ایک کی یو کے سے، کینیڈا سے جو ہے اور یورپ کنٹری سے، ان کے مجھے کالز آئے تھے اور آج انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے تو میرا یہ انہوں نے کہا کہ آپ اس فیڈ بیک کو لوگوں کے سامنے بھی لے کے آئیں اور اس ویڈیو کو جو بنائیں، کیونکہ یہ مسائل بہت زیادہ ہیں آج کل۔ مسائل کیا ہیں؟ شادی نہیں ہو رہی، بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہوئی بیٹھی ہیں، کیونکہ جب کسی فیمیل کی، یاد رکھیے گا، جب کسی فیمیل کی جب منگنی ٹوٹ جاتی ہے، ابھی منگنی ہوتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، تو معاشرے میں، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت زیادہ بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس لڑکی میں کوئی خرابی ہے جس وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب اس کے رشتہ داروں نے اس لڑکی پہ یا اس کے گھر والوں سے ضد کی بنیاد پہ یہ رکاوٹ ڈالی ہوتی ہے۔ یہ کتنا عمل ہے، اس کی وجہ سے والدین کی نظریں جھک جاتی ہیں ایک معاشرے میں، اور ایک رشتہ داروں میں نظریں جھک جاتی ہیں۔ لوگ، کیونکہ زبان کسی کی ہم روک نہیں سکتے، لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جن کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا، الحمدللہ آج وہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہیں اور بہت ہنس کھیل رہی ہیں اور ہنسی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کر رہی ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے چند میری باتیں ہیں، ویڈیو لمبی تو ہو جائے گی لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس میری ان باتوں کو ضرور آپ سنیے گا، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی، بہت ہی زیادہ فائدہ دیں گی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں بتانے سے پہلے اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام بہنوں سے اور تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر کے درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لڑکا یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور پیغام رشتہ آنے کے بعد بغیر کسی وجہ سے انکار ہو جاتا ہو، یا رشتہ ختم ہو جاتا ہو، یا کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہو، کسی وجہ سے بندش کروائی گئی ہو، تو حسب منشا شادی کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو جو دل کرے گا آپ کو ویسا رشتہ ملے گا، اور جہاں آپ چاہیں گے آپ کو اس جگہ پہ جو ہے وہ ملے گا، انشاءاللہ رشتہ ملے گا۔ وظائف قرآنی کے ذریعے سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر قسم کی بیماریوں کا علاج، زندگی کی تمام پریشانیوں اور الجھنوں کا حل اللہ پاک نے جو ہے حدیث میں اور وظائف میں رکھا ہے۔ آپ زندگی میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے روحانی عمل میں، آپ فوراً قرآن مجید کی جانب رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے دور ہوں گی۔
तमाम चीज़ें अल्लाह पाक के जो है वो ज़िक्र अज़कार में रखी हैं, अल्लाह पाक की उसकी ज़रिए से आपके वो दूर फरमाएंगे। तो जो वज़ाइफ बताए होते हैं दरअसल में ये अल्लाह पाक के ज़िक्र का एक ज़रिया होता है। जो भी वज़ाइफ होते हैं, चाहे हमारे इस्लामिक टीचर पर जो भी वज़ाइफ हैं, ये सब के सब अल्लाह पाक के ज़िक्र और उसके अज़कार का हिस्सा होती हैं। कुरान हदीस में ज़िक्र की बहुत बड़ी फजीलत आई है। अब अक्सर ये उलमाए इकराम से भी सुनते हैं कि हम अल्लाह पाक से अपनी हाजत पूरी करने के लिए जैसा गुमान अल्लाह पाक से करते हैं, अल्लाह पाक हमारी आजतें उसी गुमान की तरह, उसी गुमान की मुताबिक हमें अल्लाह पाक जो है वो अता फरमाते हैं। और हमारा पुख्ता यकीन, सच्ची नीयत, भरपूर तोजा, सारे काम काज छोड़कर अल्लाह पाक को अपना रब मान कर अगर हम कोई भी हाजत अपने अल्लाह पाक से रखते हैं तो अल्लाह पाक हमारी वो हाजत को जो है वो ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह पाक इसके तफ़ैल हमारी तमाम हाजतों को कबूल फरमाते हैं। दरअसल अल्लाह पाक को यही तो चीज़ हमारे हर अमल में मतलूब होती है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं और वो हर चीज़ हमें अता करते हैं जो हम उससे मांगना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब हम किसी पीर से या किसी शाह साहब से उनके बताए हुए वज़ाइफ, पूरे वज़ाइफ करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, हम खूब पीर साहब के या शाह साहब के गुन गाने लग जाते हैं, खूब उनकी वाह वाह करते हैं और लोगों को भी बताते फिरते हैं फ़लाँ शाह साहब ने या फ़लाँ पीर साहब ने मुझे ये वजीफ़ा जो है वो बताया था, जिसके करने से मेरा ये काम हो गया था। देखें मेरे भाइयों, अपना अकीदा आप गलत ना बनाएं। किसी के बताने से कुछ नहीं होता। करने वाली ज़ात न शाह साहब हैं न पीर साहब हैं, करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह पाक ही है। वो जिसको चाहे अता करता है। अगर वो अता करने पे आता है, सारी की दुनिया, सारे पीर, सारे अम्बिया, सारे जितने इस वक्त इंसान हैं, सारे फरिश्ते अगर लग जाएं कि हमने इसको नहीं अता होने देना, तो अल्लाह पाक वही करते हैं जो अता हो के रहता है। अल्लाह पाक के एक जो है वो कुन कहने की देर होती है, हो जा, बस वो हो जाता है। अल्लाह पाक जैसा करते हैं, जैसा जो इरादा फरमा लेते हैं, बस वो हो के रहता है। किसी के बताने से कुछ नहीं होता। अपना अकीदा जो है वो ख़राब मत किया करें। अकीदा जहाँ से आपको इस दुनिया में होता नज़र आ रहा है, उस पर आपने अकीदा नहीं रखना। आपको होता नज़र आ रहा है कि ये समुंदर ये पानी डुबो देता है, इस पर अकीदा नहीं रखना। ये होता नज़र आ रहा है छुरी काट देती है, इस पर अकीदा नहीं रखना। ये सब चीज़ें करती हैं, लेकिन करने में सिर्फ अल्लाह पाक की मोहताज हैं। तो इस वजीफ़े को पढ़ के आपने कामयाबी में अपना सारा दारोमदार, सिर्फ हम जो पढ़ते हैं और हमारी मेहनत, सच्ची लगन, हमारा कामिल यकीन और हमारी अच्छी नीयत का होना, अल्लाह पाक ये सारी चीज़ें देखते हैं। और अल्लाह पाक हमें हमारे जो मांगने की जो होती है दारोमदार, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ के देते हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना ही असल इबादत है। याद रखिएगा, जो उनको मानता है वही असल इबादत है। हाँ, अगर आपको कोई बता दे कि फ़लाँ पत्थर उंगली में पहन लो, तुम्हारी हर आजत ये पत्थर पूरी कर लेंगे, तो आप इसे पहन लेते हैं, या किसी पीर या मौलवी को काला धागा दे देते हैं और ये बांध लेते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा करना भी शिरक है। बांधने से आपका कोई काम हो जाएगा या वगैरह वगैरह, ये धागे आप बांध लेंगे, तो याद रखिएगा ऐसा करना एक बहुत बड़ा शिरक है। आप इन चीज़ों से जो है वो बचें। अगर आप रिश्तों के लिए इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से बचें। आपके रिश्ते जो हैं अल्लाह पाक ऐसी जगह, अल्लाह पाक के ज़िक्र और अज़कार में ऐसी जगह आपको अता फरमाएंगे कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ये वो बातें थी जो मैं आपको जो है वो बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक वजीफ़े के लिए वो अमाल हैं जो आपने हर सूरत करने हैं। अगर आप इन चीज़ों को करने, इन चीज़ों से मुकम्मल तौबा कर लें, अगर आप देख लें आपने इससे पहले जो किया है, इन चीज़ों से मुकम्मल तौबा कर लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह कबूल हो जाएंगी। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, फ़िरक़ों में ना पढ़ें। तमाम इंसान हर जिसने कलमा पढ़ लिया उससे आप मोहब्बत करें, आपस की नफ़रतों को ख़त्म करें, सच्चे मुसलमान बने, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें,
सलाम करने में पहल करें, सबका वो खैरात दें। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो है वो वज़ाइफ 100% आपका वो ठीक हो जाएगा। वजीफ़ा अब मैं आपको वजीफ़ा जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले वजीफ़े के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप तमाम दोस्तों के और तमाम बहनों को ये बात पता चल जाए। आपने बाद नमाज इशा के फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद, जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें तो आप अगर लड़की करना चाह रही है वो घर में करे, उसकी वालदा करना चाह रही है घर में करें। और अगर लड़का करना चाह रहा है तो उसको ये चाहिए, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आप कोई भी वज़ाइफ करेंगे तो मस्जिद में जहाँ आप बैठे होंगे तमाम आप कोई ज़िक्र करेंगे या कोई चीज़ करेंगे तो मस्जिद में मौजूद तमाम अफराद की आप नज़रों में आ जाएंगे। वो आप पे मुसलसल अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है आपके लिए कोई मुश्किलात हों। तो सबसे बेहतरीन हाल उनके लिए ये है, जब सारे नमाजी उठ के घरों को चले जाएं, आपकी नमाज जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, फिर आप 300 मरतबा या मोअनी पढ़ें। मुसलसल आप ये 8 दिन तक लाजमी करें, मुसलसल 8 दिन तक बिला नागा आप करें। इंशाअल्लाह रिश्ता जहाँ चाहेंगे आपका कायम हो जाएगा। रिश्ते में जितनी मुश्किलात आ रही हैं, पहाड़ जितनी मुश्किलात आ रही हैं, सारी मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी दूर हो जाएंगी। या मोअनी या मोअनी या मोअनी या मोअनी या मोअनीऊ, ठीक है। या मोअनी ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, आपने इस नाम को जो है वो पढ़ना है, या मोअनी। आप इस नाम को मुसलसल 8 दिन तक करें इंशाअल्लाह बिला नागा। बाद नमाज इशा के लड़का अगर करना चाह रहा है लड़का करे, और अगर लड़की करना चाह रही है लड़की भी करे। तो उसके बाद आप जो है इसमें 500 रुपये या आप जितनी आपकी तौफीक है 100 रुपया, आप बग़ैर किसी को, अपने घर वालों को, किसी से भी आप कोई ज़िक्र ना करें, कि ज़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से भी। आप इतने जो हैं वो किसी गरीब को सदक़े के तौर पे आप उसको पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के इरादे से आपका रिश्ता जहाँ चाहेंगे कबूल, हर जगह आपका जहाँ आप मर्ज़ी है चाहेंगे रिश्ते की बंदिश दूर हो जाएगी। कोई पहाड़ जितना भी जो है वो अगर आपके रास्ते में रुकावट है बनी हुई है तो वो रुकावट दूर हो जाएगी। आखिर में मेरी तमाम बहनों से, तमाम अपनी जो माएँ हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर जो है वो लाजमी हर सूरत हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। और हमारे लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें दुनिया के लिए मैं आपसे हर किसी नहीं कहता कि हमें माल और दौलत चाहिए, हम आखिरत के लिए कहते हैं। आखिरत के लिए हमारे लिए ये दुआ मांगा करें कि जब हम मरें हमारे ज़ुबान पे जो है वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो। तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है, तमाम मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप हमें हमारा जो, अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को सदके जारिया समझ के आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये दी हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।